Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki. ISKCON founder Acharya Pipani founder Acharya Sagrada, the whole world is divine grace. Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki. Jai Vishnupad Paramahansa Parivajkacharya Ashtota Shri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada ki. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki. Namacharya Shri Haridas Thakur ki. Shat Goswami Vrinda ki. Prem se kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shrivas Adi Gaura Bhakta Vrinda ki. Shri Shri Radha Krishna Gopinath Sham Kund Radha Kund Giri Govardhan ki. Ganga Mai Yamuna Mai ki. Bhakti Devi ki. Vrindadevi Tulsi Maharani ki. Hare Krishna Mahamantra ki. Yug Dharam Hari Naam Sankirtan Yagya ki. Granth Ra Srimad Bhagavad Gita ki. Granth Ra Srimad Bhagavatam ki. Granth Ra Shri Chaitanya Charitamrita ki. Nitai Gaur Premanande. All glories to the assembled of Hare Krishna. All glories to the assembled of Hare Krishna. All glories to the assembled of Hare Krishna. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada ki. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurue Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sehgana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadhvetam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sehgana Lalita Shri Vishakhanvitamscha He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tatpakanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Prishmanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhescha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gaurat Vishe Namaha. हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है ये प्रातःकाल चैतन्य चरितामृत की इस कक्षा में। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे को यहाँ निमंत्रण देने के लिए, इस क्लास के लिए भक्तों का। और तो मेरे पास कोई योग्यता नहीं है इस इतने ऊंचे ग्रंथ श्री चैतन्य चरितामृत के ऊपर कोई चर्चा करने का, लेकिन फिर भी जो भी मैंने अपने वरिष्ठ वैष्णवों से जो श्रवण किया है या जो भी यहाँ पे श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्यों में और कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो बता रहे हैं, मैं उसको बोलने का कुछ प्रयास कर सकूँ आप सब भक्तों के आशीर्वाद से। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे जो चर्चा चल रही है वो श्री चैतन्य चरितामृत की आदि लीला के 7वें अध्याय से, जिसका शीर्षक है, अध्याय का शीर्षक है भगवान चैतन्य के 5 स्वरूप। और आज जो प्रयाग में हम चर्चा करेंगे वो है 65। आपने प्रकाशानंद हतते धरिया, वसाईला सभा मध्ये सम्मान करिया, आपने प्रकाशानंद हाताते धरिया, वसाईला सभा मध्ये सम्मान करिया, आपने प्रकाशानंद हातेते धरिया, वसाईला सभा मध्ये सम्मान
प्रकाशानंद हाथे ते धरिया, वसाइला सभा मध्य सम्मान भरिया। ठीक है, तो शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य। हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अपने शरीर से प्रकाशानंद हाथे ते उनके हाथ से धरिया पकड़कर, वसाइला बैठाया, सभा मध्य सबके बीच में, सबके मध्य, सम्मान पूर्वक करिया देख कर। अनुवाद इस प्रकार से है, किंतु प्रकाशानंद सरस्वती ने स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु का हाथ पकड़कर बड़े ही सम्मान के साथ उन्हें सभा के मध्य में बैठाया। अनुवाद दोहराइए, किंतु प्रकाशानंद सरस्वती ने स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु का हाथ पकड़कर बड़े ही सम्मान के साथ उन्हें सभा के मध्य में बैठाया। तात्पर्य, श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति प्रकाशानंद सरस्वती के आदरपूर्ण आचरण की प्रशंसा की जानी चाहिए। ऐसा आचरण अज्ञात सुकृति कहलाने योग्य है, अर्थात ऐसा पुण्य जो अनजाने ही संपन्न किया जाता है। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने बड़े ही चतुराई से प्रकाशानंद सरस्वती को अज्ञात सुकृति की और अग्रसर होने का शुभ अवसर प्रदान किया, जिससे वे भविष्य में वास्तव में वैष्णव सन्यासी बन सके। तो ये बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है यहाँ पे। तो ये प्रसंग इस प्रकार से है कि अभी श्री चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो वृंदावन की यात्रा करके अब वापस जो है वो वाराणसी आ गए, वाराणसी में प्रवेश कर लिया है श्री चैतन्य महाप्रभु ने। जब श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन के लिए जा रहे थे जब, तो उस समय प्रकाशानंद सरस्वती और उनके अनुयायी श्री चैतन्य महाप्रभु की निंदा कर रहे थे, है ना। किस प्रकार से निंदा कर रहे थे? वो कह रहे थे, वेदांत अध्ययन ध्यान सन्यासी धर्म इहा छाड़े केहा करे भावु केरा करम। तो इस प्रकार से उनकी निंदा कर रहे थे कि आप वेदांत अध्ययन और ध्यान छोड़ के आप क्यों ये भावुक होके आप ये कीर्तन नृत्य गायन कर रहे हैं आप सड़कों के ऊपर। तो इस प्रकार से निंदा कर रहे थे। तो ये निंदा जब भक्तों ने सुनी, है ना, तपन मिश्र, चंद्रशेखर आचार्य ने जब ये निंदा सुनते हैं तो उनको बहुत कष्ट पहुंचता है उनके हृदय में, और वो फिर श्री चैतन्य महाप्रभु के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि इस प्रकार से जो मायावादी जो सन्यासी हैं वो आपकी निंदा कर रहे हैं। तो उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु जो है वो इस पे इतना गौर नहीं देते, वो मुस्कुराते हैं और उसको निग्लेक्ट कर देते हैं। और फिर क्या करते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु जो है वृंदावन की ओर चले जाते हैं, और वृंदावन में जाते हैं और वहाँ जाने के बाद जो श्री चैतन्य महाप्रभु का जो उद्देश्य होता है मुख्यतः श्री वृंदावन जाने का, उसको पूर्ण करते हैं। आचार्यगण बताते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन इसलिए गए थे क्योंकि वहाँ पे वो मुख्यतः जो, वैसे तो उन्होंने गोस्वामियों को ये आदेश दिए थे कि आप वृंदावन जाइए और वहाँ पे जाके जो लुप्त तीर्थ स्थान है वहाँ पे, है ना, जो लुप्त हो गए हैं, जो भगवान की दिव्य जो तीर्थ स्थल हैं वो लुप्त हो गए, उनको आप दोबारा से प्रकाशित कीजिए। तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी उस कार्य को कर रहे थे, और बहुत सारे तीर्थ स्थल जो है वो मैनिफेस्ट हो गए थे। लेकिन दो ऐसे विशेष स्थान थे जो अभी तक मैनिफेस्ट नहीं हुए थे। वो क्या था? श्री राधा कुंड और श्री श्याम कुंड, ये अभी तक मैनिफेस्ट नहीं हुए थे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का वृंदावन जाने का एक मुख्य उद्देश्य ये भी था कि वो इन जो लुप्त जो राधा कुंड और श्याम कुंड को वो मैनिफेस्ट करना चाहते थे। तो हम देखते हैं किस प्रकार से फिर वो उसको
जो है उसको मैनिफेस्ट करते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। जब ये सब हो जाता है और फिर जब वो वापस आते हैं तो फिर वापस आने के बाद वो चंद्रशेखर आचार्य तपन मिश्रा के यहाँ पे रहते हैं और वहाँ पे फिर जो उनकी वाराणसी का जो मुख्य कार्य था आने का उसको पूर्ण करते हैं। वो क्या होता है? सनातन शिक्षा, सनातन गोस्वामी को शिक्षा देना। तो श्री चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं? सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हैं। लगभग 2 महीने ये शिक्षा देने के बाद अब फिर ये प्रश्न उठता है और ये प्रश्न कौन उनके पास उठा लेके आता है? एक ब्राह्मण आता है। ब्राह्मण उनको निवेदन करता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के जो सन्यासी, मायावादी सन्यासी आपकी निंदा कर रहे हैं, आप एक काम कीजिए, आप मेरा निमंत्रण स्वीकार कीजिए, क्योंकि मैंने सभी सन्यासियों को अपने घर पे निमंत्रण दिया, आप उस स्थान पे आइए। तो इस समय जो श्री चैतन्य महाप्रभु है उनके इस निवेदन को स्वीकार कर लेते हैं। क्यों स्वीकार कर लेते हैं? क्योंकि ये उनके भक्तों की इच्छा होती है। क्योंकि भक्त इससे दुखी होते हैं, उनके दुख को जो समाप्त करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु इस निमंत्रण को स्वीकार। मुख्य कारण ये, बाह्य कारण तो यह है कि वो मायावादी, अभी देखेंगे प्रकाशानंद सरस्वती को वो डिलीवर करेंगे। उसकी जो पहला जो एक प्रकार से जो किस्त है वो आज का जो ये श्लोक है, यहाँ से वो प्रारंभ होता है। कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकाशानंद जो मायावादी सन्यासी हैं उनका उद्धार करेंगे। तो मुख्यतः वो भक्तों के कष्ट, जो भगवान है वो भक्तों के कष्ट को नहीं देख पाते वो, है ना। तो इसलिए भगवान इस निवेदन को, वैसे तो श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत स्ट्रिक्ट सन्यासी थे। स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मायावादी भाष्य सुन ले है सर्वनाश। अगर कोई मायावादी का भाष्य भी सुन लेता है तो क्या हो जाएगा? उसका सर्वनाश हो जाएगा। और यहाँ पे तो स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु जाएंगे और उनसे वार्तालाप करेंगे, बहुत सुंदर वार्तालाप होगी। तो आज के श्लोक में जो इस प्रयाग में क्या बोल रहे हैं? आपने प्रकाशानंद हाथे ते धरिया वसाईला सभा मध्य सम्मान करिया। तो जब इस प्रकार से जब श्री चैतन्य महाप्रभु वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पे पहुँचने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य, है ना। लेकिन यहाँ पे वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं? एक भक्त का, एक भक्त का रोल प्ले कर रहे हैं। श्री एक भक्त के रूप में आए हैं ना श्री चैतन्य महाप्रभु, एक भक्त के रूप में आए। तो यहाँ पे बहुत ही विनम्र, है ना, बहुत ही एक विनम्रता का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वो क्या करते हैं? वो उस स्थान पे जाके बैठ जाते हैं जो स्थान पे क्या करते हैं लोग अपने चरणों को, है ना, अपने पैरों को धोते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु उस स्थान पे जाके बैठ जाते हैं और वहां पे जाके बैठ के क्या करते हैं? वो वहां पे एक दिव्य लीला करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं? करोड़ों सूर्य का प्रकाश, मिलियंस ऑफ सन जो है उनके देह की कांति करोड़ों सूर्य के समान प्रदर्शित करते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। और जब ये मायावादी सन्यासी देखते हैं, प्रकाशानंद सरस्वती और उनके अनुयायी जब ये देखते हैं वो तो बहुत ही अचंभित हो जाते हैं। तो उनका तो वैसे ही ब्रह्म तेज के प्रति बहुत आकर्षण होता है वो, है ना। तो वो समझ जाते हैं कि ये जो सन्यासी है ये कोई साधारण सन्यासी नहीं है, ये बहुत ही विशेष है, ये बहुत विशेष सन्यासी है। तो फिर प्रकाशानंद सरस्वती हैं वो, जो कि एक ऊंचे आसन पे बैठे होते हैं। एक ऊंचे आसन पे प्रकाशानंद सरस्वती और उनके अनुयायी बैठे होते हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु नीचे, है ना, जहाँ पे पैर धोते हैं उस स्थान पे बैठे होते हैं। तो उनको ये अच्छा नहीं लगता प्रकाशानंद सरस्वती को कि इस प्रकार से, और जब वो ये देखते हैं तो बहुत ही आकर्षित हो जाते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति। तो फिर क्या करते हैं? फिर वो जाते हैं, है ना। फिर जैसे आज के प्रयाग में आ रहा है, आपने प्रकाशन हाथे ते धरिया, उनको जाते हैं और उनको क्या करते हैं? स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु का हाथ पकड़कर बड़े ही सम्मान से के साथ उन्हें सभा के मध्य में बैठाया, यानी उस स्थान पे ले जाते हैं जिस स्थान पे वो स्वयं बैठे होते हैं, वो उस स्थान पे ले जाते हैं। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जो इस
तात्पर्य में बता रहे हैं कि यहां से क्या हुआ। प्रभुपाद लिख रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु प्रति प्रकाशानंद सरस्वती के आदरपूर्ण आचरण की प्रशंसा की जानी चाहिए। ये जो उन्होंने रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड जो उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति दिखाया, प्रभुपाद बोल रहे हैं इसको बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए। ऐसा आचरण क्या कहलाता है? अज्ञात सुकृति कहलाने योग्य है। तो यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, प्रकाशानंद सरस्वती जो कि मायावादी थे उनको क्या किया, अज्ञात सुकृति दी। वैसे आप देखिए मायावादियों के लिए कृष्ण भक्ति को स्वीकार करना लगभग असंभव है। लगभग असंभव है कि कोई मायावादी जो है वो कृष्ण भक्ति को स्वीकार कर ले, संभव नहीं है। और इस प्रकार का जो आचरण है पहले भी श्री चैतन्य महाप्रभु दिखा चुके हैं, है ना। जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी आते हैं, जब उसको अपना हेडक्वार्टर बनाते हैं, तो वहां जब आते हैं तो सबसे पहले जो वो अपनी लीला प्रकट करते हैं, दिव्य लीला प्रकट करते हैं, वो कहाँ प्रकट करते हैं? वो जब वो जगन्नाथपुरी में भगवान के जब दर्शन करते हैं, तो दर्शन करते ही क्या हो जाते हैं महाप्रभु? भाव विभूषित हो जाते हैं, वो बेहोश हो जाते हैं और अष्ट सात्विक विकार प्रस्तुत करते हैं। और जब ये कौन देखता है? सार्वभौम भट्टाचार्य। सार्वभौम भट्टाचार्य कौन थे? वो इन सब जो मायावादियों के सन्यासियों के गुरु। अब सोचिए, या तो श्री चैतन्य महाप्रभु मायावादी सन्यासी प्रकाशानंद को डिलीवर करेंगे यहाँ पे उनका उद्धार, इससे पहले वो उनके गुरु वो बड़े बड़े मायावादी सन्यासियों को जो है वो ट्रेनिंग दिया करते थे सार्वभौम भट्टाचार्य। पूरे भारत के जितने भी बड़े बड़े मायावादी होते थे वो ट्रेनिंग लेने कहाँ आते थे? सार्वभौम भट्टाचार्य के यहाँ पे आते थे ट्रेनिंग लेने के। तो आप सोचिए, तो पहले ही महाप्रभु पहले ही शॉर्ट में, मतलब जो पहला उन्होंने जो अगर कहें कि अपनी दिव्य लीला से किसी को डिलीवरेंस किया, तो सबसे पहले उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य को उस लीला में, और उसमें भी उन्होंने बहुत विनम्रता के साथ, वो भी इसी प्रकार से बोलते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य को, श्री चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य, कि आप तो युवक सन्यासी, आप कैसे अपने सन्यास धर्म का पालन करेंगे? चलो आओ मैं आपको वेदांत दर्शन पढ़ाता हूं मैं। बताइए, भगवान को वेदांत दर्शन पढ़ा रहे हैं सार्वभौम भट्टाचार्य, है ना। वेदेश सर्वेर अहमे वेद्यो वेदांत कृत वेद विद ईवच अहम, है ना। भगवान तो भगवदगीता में कह रहे हैं कि सभी वेदों के द्वारा तो मुझे जाना जाता है, आई एम द कंपाइलर एंड आई एम द नोअर ऑफ द वेदास। और वहां पे वो लगभग 7 दिन तक सुबह शाम क्या करते हैं? हमको वेदांत दर्शन पढ़ाते हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु 7 दिन तो बहुत ध्यान पूर्वक और, है ना, पूरा उसको श्रवण करते हैं वो, लेकिन कुछ नहीं बोलते, सिर्फ सुनते रहते हैं। तो वो एक अब लीला है, मतलब उसके डिटेल में नहीं जाएंगे। तो हम ये बताना चाह रहे हैं किस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु जो है अपनी विनम्रता से, है ना, उद्धार करते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य को। फिर देखते हैं किस प्रकार से उनके अंदर वार्तालाप होती है, और फिर वो स्थापित करते हैं कि वास्तविक वेदांत दर्शन क्या है। तो यहाँ पे भी आप देखिए, यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु एक ट्रिक किया, यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं, इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु बड़ी ही चतुराई से प्रकाशानंद सरस्वती को अज्ञात सुकृति को अग्रसर होने का सुअवसर प्रदान किया। ये सुअवसर प्रदान किया श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशानंद सरस्वती अज्ञात सुकृति देके। तो हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे अज्ञात सुकृति क्या होती है, जो भी समय है। तो आप देखेंगे भगवान भगवत गीता में भी इसकी चर्चा करते हैं सुकृति के बारे में। वहां पे क्या बोलते हैं? चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति न अर्जुन अर्थ अर्थार्थी ज्ञानी जिज्ञासु भारत ऋषभ, है ना। तो 4 प्रकार के लोग हैं जिनको सुकृतिवान बोला गया है। सुकृतिवान है वो क्या करते हैं? वो मेरी शरण में आते हैं ना। अर्थ अर्थार्थी ज्ञानी और जिज्ञासु 4 प्रकार के सुकृति।
तो भगवान उनको बहुत अप्रिशिएट करते हैं गीता में ना, भगवान अप्रिशिएट कर रहे हैं कि कम से कम ये मेरे पास आ रहे हैं। ऑल्दो देखा जाए तो ये जो कैटेगरी के लोग हैं, ये जो कैटेगरी के लोग हैं, ये मुख्यतः जो भोग उन्मुख सुकृति है उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, या फिर ज्ञान उन्मुख सुकृति, या फिर बोला जाए मोक्ष उन्मुख सुकृति। जो अर्थार्थी होता है उसको क्या चाहिए? भोग चाहिए, है ना, दुखी है, पैसा चाहिए, अर्थार्थी। और जो ज्ञानी और जिज्ञासु होते हैं उनको क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए, यानी मोक्ष। ज्ञान का जो परम लक्ष्य क्या है? मोक्ष उन्मुख होना, है ना। तो उस कैटेगरी के हैं वो, लेकिन फिर भी भगवान उनको क्या कह रहे हैं? सुकृतिवान है। क्यों? क्योंकि मेरे पास आ रहे हैं, मेरी शरण में आ रहे हैं। तो जब मेरी शरण में आएंगे तो वो भोग उन्मुख सुकृति और ज्ञान उन्मुख सुकृति से क्या हो जाएगा? वो भक्ति उन्मुख सुकृति की तरफ अग्रसर होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? आप देखिए मंदिर में भी श्रीला प्रभुपाद ने जो सोसाइटी बनाई, आप देखिए मंदिर में भी जो अधिकतर, या फिर हम अगर वैसे देखें मुख्यतः जो भक्तों की जो संख्या है ना, वो अधिकतर जो श्रेणी है वो कौन सी है? अर्थ और अर्थार्थी। हम भी भक्ति में आए थे, बहुत कम होते हैं जो जिज्ञासु या ज्ञानी होते हैं, जिनको जिज्ञासा होती है परम तत्व को जानने की, है ना, या जो ज्ञान है ना, ज्ञान के प्रति जिनकी रुचि होती है, ये श्रेणी बहुत कम है। अधिकतर जो श्रेणी के भक्त जो हैं, है ना, वो कौन है? अर्थ और अर्थार्थी, है ना। हमें दुख होता है, कष्ट होता है, तो हम भगवान की शरण में आते हैं, कृष्ण की शरण में आ जाते हैं। अधिकतर तो संख्या के जो लोग हैं वो जब उनके जीवन में कष्ट आते हैं, समस्या आते हैं, वो कहाँ जाते हैं? वो किनकी शरण लेते हैं? देवी देवताओं की शरण लेते हैं। आप देखिए, प्रभाव 99% बोलते हैं ना प्रभाव, 1% है वो संख्या, 1% है जो कि भगवान की शरण में आते हैं, ऐसे अर्थार्थी कैटेगरी के लोग। अधिकतर लोग तो देवी देवताओं की शरण में लगे रहते हैं, है ना। इसलिए वो सिर्फ क्या करते हैं? वो भोग उन्मुख स्वीकृति ही इकट्ठी करते हैं वो। और भोग उन्मुख स्वीकृति से क्या प्राप्त होता है उनको? क्या है उसका रिजल्ट? स्वर्ग, है ना। उनको अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा? उन सुकृतियों को इकट्ठा करने से ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। और वो भी ऐसा नहीं होता, शास्त्र बताते हैं वो भी तब, वो परफेक्शन भी तब अटेन होती है कि वो भोग उन्मुख सुकृति भी अगर वो भक्ति के संपर्क में आती है। वो भी इतनी सरलता से, देवी देवता भी स्वर्ग नहीं देते हैं, आप समझ रहे हैं। वो भी तब मैच्योर होती है जब वो इन कनेक्शन टू द डिवोशन, तब जाके कहीं स्वर्ग की प्राप्ति हो पाती है वो। और उसी प्रकार से मोक्ष उन्मुख सुकृति भी उसी प्रकार से है वो, कि वो भी तब मैच्योर होती है जब वो किसी भक्ति के संपर्क में आएगी। इसलिए आप देखिए श्रील रूप गोस्वामी, या फिर एक ग्रंथ है शुद्ध भक्ति चिंतामणि, हिज होलिनेस शिवराम स्वामी महाराज के द्वारा लिखा गया बहुत सुंदर ग्रंथ है। वो भक्ति रसामृत सिंधु का ही उन्होंने एलेबरेट जो है वो डिस्कशन है शुद्ध भक्ति चिंतामणि। तो महाराज उसमें असंख्य प्रकार की मिश्रित भक्ति का वर्णन करते हैं। उसमें मिक्स डिवोशनल सर्विस, प्योर डिवोशनल सर्विस तो है ही है, लेकिन देयर इज मतलब न्यूमरस टाइप ऑफ मिक्स डिवोशनल सर्विस, है ना। कर्म मिश्रित भक्ति, भोग मिश्रित भक्ति, ज्ञान मिश्रित भक्ति, ध्यान मिश्रित भक्ति, और इसके भी कई कई प्रकार महाराज उसमें डिस्कस करते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि अगर हमें अपने कर्म को भी, अगर हमें उसकी भी, अगर हमें परफेक्शन अचीव करनी है तो वो तभी होगी, कहने का अर्थ है कि जब वो भक्ति के संपर्क में आएगा, जब भक्ति उसमें होगी। तो यहाँ पे जो अज्ञात सुकृति प्राप्त हो रही है प्रकाशानंद सरस्वती को, वो कौन सी है? वो है भक्ति उन्मुख सुकृति। कि उन्होंने किनकी सेवा की? चैतन्य महाप्रभु की, जो किस रूप में आए हैं? भगवान भक्त के रूप में आए हैं।
तो आप देखिए जो भोग उन्मुख स्वीकृति है, आप देखिए उसका एक बहुत सुंदर उदाहरण शास्त्रों में आता है। वैसे बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन मैं आपको एक बहुत सटीक उदाहरण दूंगा। आप देखिए वो है श्रीमद् भागवतम के 10th कैंटो में नल कुबेर और मणिग्रीव का। नल कुबेर और मणिग्रीव के पास जो ऑपुलेंस था, जो उनका ऐश्वर्य था, वो क्या था? वो भोग उन्मुख सुकृति का रिजल्ट था एक प्रकार से। आप देखिए कैसे वो भोग उन्मुख सुकृति से भक्ति उन्मुख सुकृति की तरफ अग्रसर हुए। जब नल कुबेर और मणिग्रीव किनके संपर्क में आते हैं? नारद मुनि के संपर्क में। जब उनको नारद मुनि का संग प्राप्त होता है, तब उनको क्या होता है? उनको अवसर प्राप्त होता है कहां पे? नंद महाराज के घर में, है ना, पेड़ के रूप में, है ना, पेड़ के रूप में उनको वहां पे रहने का अवसर प्राप्त होता है। तो वो उनको क्या प्राप्त होती है? भोग उन्मुख सुकृति से वो भक्ति उन्मुख सुकृति उनको मिलती है, वो एक भक्त के संपर्क में आने से। उसी प्रकार से आप देखेंगे मोक्ष में भी आप देखेंगे एक उदाहरण जो मुझे लग रहा था कि 4 कुमारों का। 4 कुमार कौन थे? ब्रह्मवादी। उनका आकर्षण ब्रह्मानंद के प्रति था, आकर्षित थे। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ब्रह्मवादी एंड मायावादी। कई बार हम इसको एक ही मान लेते हैं, ब्रह्मवादी और मायावादी एक ही है। नहीं, ब्रह्मवादी और मायावादी में बहुत डिफरेंस है। क्योंकि जो मायावादी है वो भगवान के साकार रूप को नहीं मानते, वो उसको डिनाई कर देते। देयर इज नो फॉर्म, गॉड इज फॉर्मलेस, उसको डिनाई कर देते हैं। लेकिन जो ब्रह्मवादी है उनका आकर्षण ब्रह्म की तरफ होता है, भगवान के ब्रह्म तेज की तरफ होता है, लेकिन वो भगवान के साकार रूप को एप्रिशिएट करते हैं, भगवान के साकार रूप को मानते हैं। तो जो 4 कुमार थे वो थे ब्रह्मवादी, उनका आकर्षण ब्रह्म तेज की तरफ था। लेकिन वो भी जब किनके संपर्क में आते हैं? वो किसके संपर्क में आते हैं? जय विजय के संपर्क में आने से पहले भगवान के चरणों की तुलसी, है ना, तुलसी महारानी के जब संपर्क में आते हैं, जो कि भगवान की शुद्ध भक्त है, जब उनके संपर्क में आते हैं तो उनका भक्ति के प्रति आकर्षण विकसित हो जाता है, वो भक्ति उन्मुख हो जाते हैं। तो इससे हम आपको ये समझाना चाह रहे थे कि भक्ति उन्मुख सुकृति सब में सबसे टॉप मोस्ट है। तो ये जो अज्ञात सुकृति श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ प्रकाशानंद सरस्वती को दे रहे हैं, जो उनको प्राप्त हुई, वो है भक्ति उन्मुख सुकृति। इससे हम देखेंगे कि जो ये प्रकाशानंद सरस्वती है, इस छोटी सी सेवा क्या किया? बस उनको पकड़ के आसन, सिर्फ इतना करने मात्र से सबसे पहले क्या होगा? वो श्री चैतन्य महाप्रभु से हरि नाम की महिमा का गुणगान श्रवण करेंगे। सबसे पहला रिजल्ट, दे हियर द ग्लोरीज ऑफ द होली नेम फ्रॉम द लोटस माउथ ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। क्योंकि मायावादियों के लिए भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का श्रवण करना लगभग असंभव है, नहीं श्रवण करते। वो शुष्क तर्कों में लगे रहते हैं। जो वेदांत जो शुष्क तर्क होते हैं, बस उसी में ही आनंद लेने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला क्या हुआ? इस सुकृति का क्या परिणाम हुआ? वो भगवान के नाम की महिमा का श्रवण करेंगे और फिर अंतोदगत्वा क्या हो जाएंगे? दे बिकम अ वैष्णव सन्यासी। क्या प्रभुपाद लिख रहे हैं ना, प्रभुपाद लिख रहे हैं, जिससे वे भविष्य में वास्तव में वैष्णव सन्यासी बन सके। तो भविष्य क्या, अभी कुछ ही समय बाद वो है, वो जो कि वो निंदा कर रहे थे श्री चैतन्य महाप्रभु की कि भावुक होकर संकीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं, वो स्वयं अपने 10,000 सन्यासियों के साथ इस कार्य में लगेंगे। वो स्वयं संकीर्तन करेंगे, नाम संकीर्तन करेंगे प्रकाशानंद सरस्वती। तो ये परिणाम है अज्ञात सुकृति का। अब देख रहे हैं, अब हम कुछ चर्चा करेंगे कि ये भक्ति उन्मुख सुकृति क्या होती है। भक्ति उन्मुख सुकृति जो है वो मुख्यतः भक्त के संपर्क में आने से प्राप्त होती है।
आप सबके जीवन में हम देख सकते हैं, हम अपने जीवन में भी देख सकते हैं कि हमें भक्ति कैसे प्राप्त हुई, है ना। जब हम भक्तों के संपर्क में आते हैं तब हमें ये भक्ति उन्मुख सुकृति प्राप्त होती है, और जब ये मैच्योर होती है तब हम प्योर डिवोशनल सर्विस कर पाते हैं। When this bhakti unmukh sukriti become matured, then we'll able to perform pure devotional service. That is the result of bhakti unmukh sukriti. यानी कि ऐसे कार्य जो हमें भक्ति की तरफ उन्मुख कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये कौन होता है? जब हम भक्तों के संपर्क में आते हैं। वैसे तो और भी माध्यम है, डायरेक्ट कोई भगवान के संपर्क में आ जाए या कोई शास्त्रों के संपर्क में आ जाए, तो उससे भी क्या होता है, ये सुकृति मिलती है, भक्ति उन्मुख सुकृति प्राप्त होती है। लेकिन शास्त्र बताते हैं कि जो स्टैंडर्ड जो इसका जो प्रोसीजर है वो क्या है, वो मुख्यतः भक्त के माध्यम से ये होता है, ये सुकृति प्राप्त होती है। जैसे कि आप देखेंगे श्रीमद् भागवतम में एक प्रसंग आता है, बहुत सुंदर प्रसंग है अजामिल का। अजामिल के प्रसंग में देखेंगे कि अजामिल को भी भक्ति उन्मुख सुकृति प्राप्त हुई। कैसे प्राप्त हुई उसको? भक्तों की कृपा से। भक्त की कृपा से अजामिल, जो कि महापापी था, हर प्रकार के पाप अजामिल करता था। स्तेन सुरापा मित्र दुख ब्रह्मा गुरु कल्पदा स्त्री वैश्या गोपित्र हंता ये च पताकिनो आपरे, इतने सारे पाप किए थे। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि वो जब विष्णु दूत और यमदूतों का जब वार्तालाप होती है, तो विष्णु दूत जब ये बोलते हैं कि आप इसको लेके जा रहे हो, ये तो महासौभाग्यशाली अजामिल, आप इसको लेके जा रहे हो, ये तो नरक में जाने का अधिकारी नहीं है। वो बिल्कुल जो यमदूत है वो अचंभित हो जाते हैं, ये बोलते हैं ये तो महापापी है, इसने तो हर प्रकार का पाप किया है, आप कैसे मना कर रहे हो कि ये नरक में ले जाने का अधिकारी नहीं है वो। तो वहां पे विष्णुदूत बोलते हैं अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोटि अमहसम अपि यद व्याजरह विवश नाम स्वस्ति अयनम हरि, कि अयम ही कृत निर्वेशो, इसने सारे कृत कर लिए। निर्वेश मतलब ऑल टाइप ऑफ अटॉनमेंट्स सब कर लिए। जन्म कोटि अमहसम अपि, मतलब वहां पे शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाल लिखते हैं इसकी टीका में कि अजामिल ने जो भगवान के नाम का उच्चारण किया, जब पहली बार जब नाम का उच्चारण किया था, जब वो ब्राह्मण जो भक्त होते हैं जब वो आते हैं उस वैश्य के घर पे, अजामिल उस समय उपस्थित नहीं होता, और वो उनको ये निवेदन करते हैं कि आप इस पुत्र का नाम क्या रखिए, नारायण रखिए। तो जब वो अजामिल अपने पुत्र का नाम नारायण रखता है, जब पहली बार वो नारायण का नाम उच्चारण करता है, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रणाम होते हैं, उसी समय अजामिल के सारे पाप, अब तक उसने जीवन में जितने भी पाप किए सबसे मुक्त हो जाता है। और खाली ये नहीं कि इस जीवन के, वो कहते हैं भविष्य में जो करेगा उससे भी मुक्त होगा, पूर्व काल में जो किया उससे भी मुक्त हो जाएगा वो। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं उसके बाद जितनी बार भी अजामिल ने भगवान नारायण का नाम का उच्चारण किया, भगवान उसको कैसे ले रहे थे? भगवान उसको भक्ति के रूप में स्वीकार कर रहे थे। ये मेरी भक्ति कर रहे हैं, ले अपने पुत्र का नाम ले रहा था, लेकिन भगवान उसको क्या कंसीडर कर रहे हैं? मेरी भक्ति कर रहे हैं, मेरा नाम ले रहा है। इसीलिए अंत काल में जब मृत्यु के समय जब नारायण नाम का उच्चारण करता है अजामिल, तो उस समय तुरंत विष्णु दूतों को भेजते हैं, भगवान जाओ इसकी रक्षा करो। वैसे तो उसने अपने पुत्र का नाम लिया था, म्रियमाणो हरेर नाम घृणन पुत्रोपचारितम अजामिलो अपि अगद्धाम किम उता श्रद्धाया घृणम। शुकदेव गोस्वामी इसको कंक्लूड करते हुए बोलते हैं कि म्रियमाणो हरेर नाम, मरते हुए अजामिल ने हरि का नाम लिया, लेकिन ले रहा था पुत्र को उच्चारण कर रहा था। तो बाहरी दृष्टि से देखा जाए अपने पुत्र को पुकार रहा है, लेकिन अगर भगवान की दृष्टि से देखा जाए तो भगवान उसको क्या ले रहे हैं?
मेरा नाम ले रहा है, मेरी भक्ति कर रहा है, मेरा नाम ले रहा है। भगवान कह रहे कौन्त्या प्रति जाना ही नामे भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होता। तो भगवान ने यहाँ पे अजामिल को क्या की, पूरी सुरक्षा प्रदान की। तो अजामिल को इस प्रकार से जो है वो भक्ति उन्मुख सुकृति प्राप्त हुई, वो भक्ति के प्रति अग्रसर हुआ। और देखते हैं कैसे फिर अजामिल जो अंत में फिर कैसे अजामिल जो है, एक तो भगवान के नाम ले रहा था वो अननोइंगली, अज्ञात सुकृति इकट्ठी कर रहा था अजामिल, है ना। दिन में कई 100 बार वो अपने पुत्र को पुकारता था। और दूसरा उसको जो सुकृति हुई, जैसे हमने आपको बताया भक्त के माध्यम से सुकृति प्राप्त होती है। दूसरी उनको सुकृति प्राप्त हुई जब वो विष्णु दूतों से श्रवण करता है भगवत नाम की महिमा का। जब वो ये देखता है कि किस प्रकार से यमदूत और विष्णु दूतों के बीच में वार्तालाप हो रही है उससे, तो जब ये पूरी वार्तालाप हो जाती है, पूरी वार्तालाप होने के बाद वो बहुत जो है वो पश्चाताप करता है अजामिल, और तुरंत जो विष्णुदूत है उस वहां से प्रकट हो जाते हैं। वो उनको धन्यवाद करना चाहता है, लेकिन वो इतना मौका भी नहीं देते विष्णुदूत के वो धन्यवाद कर सके। विष्णुदूत तुरंत उस स्थान को छोड़ के चले जाते हैं। तो प्रभुपाद वहां तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान के भक्त कभी नहीं चाहते कि वो उनका गुणगान हो, वो हमेशा यही चाहते हैं कि भगवान का गुणगान हो। इसलिए विष्णुदूत वहां उस स्थान से अप्रकट हो जाते हैं। तो वहां पे एक श्लोक में शुकदेव गोस्वामी बताते हैं, एक बहुत सुंदर श्लोक है, जिसमें कि वो भगवान के भक्तों की महिमा करते हैं किस प्रकार से कि एक क्षण भी अगर कोई भगवान के भक्तों का संग कर लेता है, मुक्त सर्वानुबंधनम, लास्ट में बोलते हैं मुक्त गंगा द्वार उपेयाय मुक्त सर्वानुबंधनम। अयम पहला 2 लाइन में मिस कर रहा हूं कि जैसे ही वो एक क्षण का जब वो संग करते हैं विष्णु दूतों का, तो तुरंत उनके अंदर इच्छा होती है कि गंगा द्वार उपेयाय मुक्त सर्वानुबंधनम, कि अजामिल जो है जो सभी प्रकार से मुक्त हो जाता है, सभी बंधनों से मुक्त होने के बाद वो क्या निश्चय करता है कि अब मैं क्या करूंगा, अब मैं हरिद्वार जाके मैं हरि का भजन करूंगा। मैं बस अब मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य क्या है, भगवान के नाम का जप करना, बस। तो ये डिटर्मिनेशन ये उनको कैसे प्राप्त होती है, ये होती है भक्त की कृपा से, भक्तों की कृपा से। चले क्यों गए थे विष्णुदूत, ऐसे चले क्यों गए बिना थैंक यू स्वीकार किए? बताया ना कि वो प्रभुपाद जी वहां पे लिख रहे हैं कि डिवोटी डजंट वांट टू हियर देयर ग्लोरिफिकेशन, वो अपना गुणगान नहीं सुनना चाहते। अजामिल उनको बहुत धन्यवाद करना चाह रहा था, उनका गुणगान करना चाह रहा था, लेकिन प्रभुपाद लिख रहे हैं भक्त हमेशा ही भगवान का गुणगान करना चाहता है, इसलिए वो तुरंत ही उस स्थान को मतलब वो अदृश्य हो जाते हैं। तो एक ये उदाहरण, और दूसरा उदाहरण आता है श्री चैतन्य चरितामृत में, एक और बहुत सुंदर उदाहरण है। वो उदाहरण आता है नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी का। किस प्रकार नामाचार्य हरिदास ठाकुर का संग प्राप्त करके एक वैश्या जो है वो महान भक्त बन जाती है। जो वैश्या नामाचार्य हरिदास ठाकुर को दूषित करने के लिए आई थी, रामचंद्र खान द्वारा भेजी गई उस वैश्या कैसे एक महान भक्त बन जाती है, उसका वर्णन कृष्णदास कविराज गोस्वामी करते हैं। और उसमें वो लिखते हैं तुलसीर तंके वैश्या नमस्कार करी, द्वारे वासी नाम सुने भले हरि हरि। मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन इस बात को मैं बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से आप देखिए कि जो भक्त हैं किस प्रकार से इस सुकृति को देते हैं, बांटते हैं। और वो कुछ साधारण सुकृति नहीं है, जो भक्तों के द्वारा में ये भक्ति उन्मुख सुकृति है, ये हमें अपने जीवन की परफेक्शन दे सकती है। अगर हमने इसको सही से स्वीकार कर लिया, ये इसको समझना बहुत आवश्यक है। हमें जो ये भक्ति करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, ये भक्तों की कृपा है।
एक बार प्रभुपाद जी के शिष्य प्रभुपाद जी से पूछते हैं, क्योंकि कई बार हम सुनते हैं ना कि दिस भक्ति इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, नेहापि कर्मो नाशो अस्ति प्रत्यवायो विद्यते स्वाल्पमपि धर्मस्य त्रायतो महतो व्यात्, है ना, कि थोड़ी सी भी भक्ति कर ली तो ये क्या है हमारा, ये तो इटर्नल क्रेडिट है, ये कभी नष्ट नहीं होता है। तो कई बार लगता है प्रभु जी ये फिर इसका मतलब हमारी भक्ति चल रही है। तो ये प्रश्न प्रभुपाद जी से पूछा उनके भक्तों ने, उनको भी ऐसा लग रहा था कि हमने भी भक्ति की है ना, हमारे भी क्रेडिट थे इसलिए हम कर पा रहे हैं। तो प्रभुपाद से प्रश्न पूछते हैं, प्रभुपाद व्हाट इज अवर क्वालिफिकेशन, हमारी क्या क्वालिफिकेशन है आप बताइए, हम ये नाम संकीर्तन कर पा रहे हैं, सेवा कर पा रहे हैं, है ना। प्रभुपाद बोल रहे हैं यू हैव नो क्वालिफिकेशन, आपकी कोई योग्यता नहीं, आई हैव गिवन यू द क्वालिफिकेशन, मैंने आपको वो योग्यता प्रदान की, आपके पास कोई योग्यता नहीं थी कि आप भगवान की सेवा में लगो, आप नाम संकीर्तन करो, आई हैव गिवन यू द क्वालिफिकेशन, मैंने आपको ये स्वीकृति दी है। तो इसीलिए हमें जानना चाहिए, जो भक्ति कर रहे हैं, कई बार हमें भी ऐसा लगता है प्रभु जी मेरा था बड़ा अच्छा अकाउंट चल रहा था प्रभु जी, है ना, तो बस उसी से चल रही है अपनी गाड़ी। नहीं, जानना चाहिए जो हम भक्ति कर पा रहे हैं पूर्ण रूप से भक्तों की कृपा है, ये बिना भक्तों की कृपा के भक्ति संभव ही नहीं है। इसकी विस्तार में चर्चा करते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन शिक्षा में, आप पढ़िएगा द प्रोसेस ऑफ डिवोशनल करके एक चैप्टर है, आई थिंक 22 या 23 चैप्टर है, मध्य लीला, वहां पे बहुत विस्तार में। तो वहां पे एक श्लोक में बोलते हैं, महत कृपा बिना कोनो कर में भक्ति नाया, कृष्ण भक्ति दूरे रहे संसार न छाया। वो क्या बोल रहे हैं, महत कृपा बिना कोनो क्रमे भक्ति नाया, अगर महत की कृपा नहीं होगी तो भक्ति प्राप्त होना संभव नहीं है। फिर क्या बोलते हैं, भक्ति तो छोड़ दो, कृष्ण भक्ति दूरे रहे संसार नहीं छाया, भक्ति तो मिलेगी नहीं, वो तो भूल ही जाओ, ये संसार भी क्षय है, इससे भी डिलीवर नहीं हो सकते आप। तो ये है भक्तों की कृपा, ये है भक्ति उन्मुख स्मृति जो भक्त हमें प्रदान करते हैं। आप देखिए श्रीला प्रभुपाद जी ने पूरा ऑर्गेनाइजेशन इस प्रकार से बनाया कि अधिक से अधिक लोगों को भक्ति उन्मुख सुकृति प्राप्त हो सके, है कि नहीं। आप देखिए मंदिर में भक्त आते हैं, है ना, वो किस प्रकार से गरुड़ देव जी का दर्शन कर लेते हैं, है ना, तुलसी महारानी को प्रणाम कर देते हैं, प्रभुपाद जी को प्रणाम कर देते हैं। वो कुछ जानते नहीं है, इनकी महिमा जानते हैं, कोई कुछ नहीं जानते, वो ऐसे ही आते हैं, प्रणाम कर दिया, है ना, डीटीज को देख लिया, दर्शन कर लिया, है ना, कोई दंडवत कर रहा है तो दंडवत कर दिया, दंडवत प्रणाम कर दिया, है ना, ये महाजल अगर मिल रहा है महाजल ले लिया, है ना, कुछ प्रसाद मिल गया प्रसाद ले लिया, कथा हो रही थी कथा में बैठ गए, है ना। तो इस प्रकार से उनको नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन उनको क्या प्राप्त हो रहा है, भक्ति उन्मुख सुकृति प्राप्त हो रही है, जो कि भविष्य में क्या करेगी, उनको भक्ति की तरफ उन्मुख करेगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति डायरेक्ट भक्त के संपर्क में आ जाता है तो देयर इज अ वेरी गुड चांस कि वो भक्ति को स्वीकार कर ले, स्पेशली अगर वो कोई शुद्ध भक्त के संपर्क में आता है, चाहे प्रभुपाद जी के संपर्क में। प्रभुपाद जी के संपर्क में जैसे जो आता था वो भक्त बन जाता था। एक छोटा सा आपको पास टाइम बताऊंगा। एक बार श्रीला प्रभुपाद प्लेन में प्रभुपाद जा रहे थे, स्थान तो मुझे याद नहीं कहाँ से कहाँ जा रहे थे, तो प्रभुपाद जा रहे थे, जिसके श्याम सुंदर प्रभु अपनी पुस्तक में लिखते हैं। तो उसमें जा रहे थे, तो जाते हुए क्या होती है, एक जो एयर होस्टेस क्या करती है, प्रभुपाद को सर्व कर रहे होते हैं, प्रसाद सर्व हो रहा होता है, तो एयर होस्टेस वहां आती है और प्रभुपाद के प्लेट में से प्रसाद खा लेती है। वो जैसे खाती है सारे भक्त हैरान हो जाते हैं, ये क्या कर दिया इन्होंने। तो प्रभुपाद बोलते हैं ठीक है इट्स ओके, प्रसाद लेती है और चली जाती है। तो हो जाता है। कुछ वर्षों बाद अमेरिका के एक स्थान में भक्त प्रचार कर रहे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं, प्रचार कर रहे होते हैं, और वहां जाते हैं तो वो एक स्थान पे पहुंचते हैं, तो उस स्थान पे वो क्या देखते हैं कि भगवान के नाम का संकीर्तन हो रहा है। एक घर में जाते हैं, नॉक करते हैं, तो एक महिला निकलती है, तो वहां जैसे ही वो देखते हैं उसमें
उसके घर में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे ऑल्टर, वहाँ गौर निताई, राधा कृष्ण का ऑल्टर है, तुलसी महारानी है, प्रभुपाद है। बड़े हैरान हो जाते हैं, कहते यहाँ कैसे ये? तो वो फिर जो महिला होती है वो उनको बताती है, वो कहती है कि एक बार मुझे अवसर प्राप्त हुआ था प्रभुपाद जी का संग, और वहां पे मैंने उनका महाप्रसाद उचिष्ट ग्रहण किया था, जिससे कि मेरे को ये प्रेरणा मिली है ना, जिससे कि मैं भक्ति को स्वीकार कर पाई मैं। तो ये है ना, शुद्ध भक्त इस प्रकार से जो है वो करता है। जैसे प्रभुपाद जी ने पूरा इस प्रकार से आयोजन किया कि हम अधिक से अधिक लोगों को ये सुकृतियां बांट सकें, सुकृति दे सकें, जिससे कि वो भक्ति की तरफ उन्मुख हो सके। और अगर हमें प्रचार करने का अवसर प्राप्त होता है, अगर डायरेक्ट कोई भक्त के संपर्क में आ जाता है, तो फिर उसकी भक्ति का उदय शीघ्र हो जाता है, जल्दी हो जाता है। लेकिन इसमें हमें एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जब हमें ये अवसर प्राप्त हो गया, जैसे हम सब भक्तों को ये भक्तों की कृपा से ये अवसर प्राप्त हो गया कि अब हम भक्ति कर पा रहे हैं, तो हमें इसको बहुत ही कृतज्ञता के साथ लेना चाहिए। हमें इसको ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। कई बार क्या होता है कि अब हम भक्ति हमें प्राप्त हो जाती है, हमारी दीक्षा भी हो जाती है, अब हम दीक्षित हो जाते हैं, है ना, तो फिर हम चीज़ों को बहुत ग्रांटेड ले लेते हैं। हम कहते हैं ठीक है, अब तो मुझे सब पता चल गया, अब तो मुझे पता है ना, अब तो मैं भक्त बन गया हूँ ना, आई एम अ डिवोटी, है ना, आई एम इनिशिएटेड डिवोटी, है ना। तो हम इस कृतज्ञता को भूल जाते हैं, इस कृतज्ञता के भाव को खो देते हैं। तो जैसे ही कृतज्ञता के भाव चला जाएगा, तुरंत जो भक्ति का जो प्रवेश है ना हृदय में, वो रुक जाए। क्योंकि भक्ति जो है, जो भक्ति देवी है, वो स्वतंत्र है, वो बाध्य नहीं कर सकते हम उनको प्रकट करने के लिए, वो बाध्य नहीं है। वो जैसे भगवान स्वतंत्र है ना, ऐसे भक्ति भी भगवान की अंतर्गत शक्ति है, वो भी स्वतंत्र है। वो तो ऐसा नहीं प्रभु जी अब तो मैं नाम जप कर रहा हूं, अब तो मैं भागवत श्रवण कर रहा हूं, मैं सेवा कर रहा हूं, अब तो भक्ति मेरे हृदय में स्फुरित हो ही जाएगी। नहीं, कोई गारंटी नहीं। भक्ति स्वतंत्र है। भक्ति तब प्रकट होती है जब वो भक्त के हृदय में उस कृतज्ञता के भाव को देखती है। जब वो ये देखती है कि भक्त कितना कृतज्ञ है जो उसको प्राप्त हुआ है, उसको स्वीकार करने में और उसको देने में, तब हमें जो ये भक्ति उन्मुख सुकृति प्राप्त हुई है, ये मैच्योर अवस्था में आती है, ये मैच्योर्ड होती है। नहीं तो ये भक्ति उन्मुख सुकृति का हम पूर्ण लाभ नहीं उठा पाएंगे हम। इसलिए हमारे मंदिर में हिज होलीनेस भक्ति माधुर्य गोविंद स्वामी महाराज अक्सर ये बोला करते थे कि इस्कॉन में अधिकतर भक्त स्वर्ग की प्राप्ति होगी। महाराज ऐसा बोला करते थे। ये स्टेटमेंट बहुत हो सकता है हमें अच्छा ना लगे, लेकिन महाराज अक्सर बोलते थे, क्योंकि जो रिसीवर का जो मूड है ना, वो चला जाता है। कृपा ये हमें रिसीव होती है, ये अचीव नहीं होती है, इसको अचीव नहीं कर सकते हम, भक्ति को अचीव नहीं किया जाता। ये रिसीविंग मोड है, रिसीव किया, ये कृपा है। तो इसको समझना, जब ये समझेंगे तब हम जो प्योर डिवोशनल सर्विस जो कि हमें आचार्यों ने दी, जो यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु दे रहे हैं, आप देखिए श्री चैतन्य महाप्रभु इस प्रकाशानंद सरस्वती को वो उस अवस्था को प्रदान करेंगे जो कि भक्ति की सर्वोच्च अवस्था है, प्रेमा भक्ति प्रदान करेंगे प्रकाशानंद सरस्वती। जो आगे आप देखिएगा इस अध्याय में, वो भी भाव विभोर होके भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे, वो नृत्य करेंगे, जो कि द परफेक्शन ऑफ लाइफ है। दिस इज द एसेंस ऑफ द टीचिंग ऑफ श्रीमद् भागवतम, टू डांस लाइक अ मैडमैन, टू चैंट द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड। एवं व्रता स्वप्रिय जातो कृत्य, है ना, देयर इज द वर्स इन श्रीमद् भागवतम 11th कैंटो। तो वो एसेंस है, वो श्रीमद् भागवतम का अगर एसेंस जानना है, उसकी शिक्षाओं को, जो एसेंस है वो ये वर्ष है कि भगवान के नाम का संकीर्तन करना भाव विभोर होके,
पागलों की तरह नृत्य करना उन्माद अवस्था में, तो वो उन्माद अवस्था प्राप्त होती है प्रकाशानंद सरस्वती को उस प्रकार से, समझ रहे? तो इसलिए हमें इसको बहुत जो है कृतज्ञता के भाव के साथ हमें इस भक्ति को अपने जीवन में इसका हमें अभ्यास करना चाहिए, है ना। जो हम नाम जप करते हैं, जो हम ये श्रवण करते हैं, इसके अंदर कृतज्ञता की भावना होनी चाहिए। हमें कृतज्ञता, इस मूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, रूप गोस्वामी लिखते हैं ना, एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियस डिपेंड अपॉन द एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर। ये एटीट्यूड पे निर्भर करता है। वो एटीट्यूड क्या है? दिस एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। ये तब हम शीघ्र तेजी से भक्ति में प्रगति करेंगे। हम बहुत शीघ्र भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो साधक अनर्थ निवृत्ति की स्थिति में ही फंसा रहता है। वो अपने अनर्थों से ही संघर्ष करता रहता है, अनर्थों में ही फंसे रहेंगे सालों सालों तक। 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल हो गए, अनर्थ निवृत्ति पे ही फंसा हुआ। अर्थ प्रवृत्ति हो ही नहीं रही, अनर्थ निवृत्ति बनी हुई है। क्यों? क्योंकि उसके भजन में, उसकी भक्ति में ये मूड ऑफ ग्रेटिट्यूड मिसिंग है, इस सेवा का भाव मिसिंग है। अगर ये ऐड हो जाएगा, तो ग्रेटिट्यूड, ये अगर हमारी प्रैक्टिसेस में ऐड हो जाएगा, आप देखिए हम शीघ्र अनर्थ निवृत्ति से निष्ठा से रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम की तरफ प्रगति कर लेंगे। नहीं होगा तो फिर हमें लगेगा प्रभु जी ये तो प्रोसेस ही काम नहीं करता, ये तो प्रोसेस, मुझे तो 15 साल हो गए, मुझे तो 20 साल हो गए, है ना, मेरे तो अनर्थ ही नहीं जा रहे, मैं तो उसी से ही जूझ रहा हूं मैं। नहीं, हमें जानना चाहिए कहाँ कमी है। भक्तों ने तो हमें दे दी, भक्ति दे दी, भक्ति हमें प्राप्त हो गई भक्तों के माध्यम से, प्रोसेस हमें मिल गया, साधन मिल गया ना। अब साधने की तरफ हमें खुद बढ़ना है, हमें वो हमारा एंडेवर है। कैसे मैं इस कृपा को आकर्षित करूं, मैं, ये हमारा प्रयास है। तो इसीलिए जो प्रचारक होते हैं, जो लीडर होते हैं, उनकी जिम्मेवारी है ना, कि हम स्वयं इस प्रकार का अभ्यास करें। अगर हम स्वयं अभ्यास नहीं करेंगे तो आगे आने वालों को, जिनको हम प्रचार करें, हम क्या देंगे? हम, आप बताइए, समझ रहे? तो लीडर की ये जिम्मेवारी है, ये, है ना। स्पेशली जो प्रीचर्स होते हैं, जो प्रचार कर रहे हैं, उनकी जिम्मेवारी है ये। नहीं तो ना हम खुद प्रगति कर पाएंगे, और जिनको हम गाइडेंस दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको भी हम सही जो है मार्ग निर्देशन नहीं कर पाएंगे हम। तो इसीलिए हमें इस प्रकार से, जिस प्रकार से शास्त्र बता रहे हैं, गुरुजन बता रहे हैं, उस प्रकार से हमें इस भक्ति की क्रियाओं को करना है। ठीक है, तो यहीं पे हम इसको विराम देंगे। समय हो गया, मैं क्षमा चाहूँगा, 10 मिनट ज़्यादा हो गए। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? रवि जी, मेरे 2 क्वेश्चन थे। एक तो कि हमको भक्तों का संग प्राप्त हुआ, जो भक्ति उन्मुख सुकृति है, क्या उसके लिए भी कुछ सुकृति चाहिए? जैसे हमको भक्तों का संग प्राप्त हुआ, फिर भक्ति करने का मौका मिला। भक्ति उन्मुख सुकृति के लिए संदेह, अगर हम थोड़े से, जैसे होते हैं जो पुण्यवान लोग होते हैं, ये शाम तो अंत गतम पापम जनाने पुण्य कर्मते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजनते माम दृढ़व्रता। तो जो पायस सोल्स होती हैं, वो आकर्षित होते हैं, वो भक्ति उन्मुख सुकृति स्वीकार करने में। पायस मतलब वो, जो पायस मतलब जो जनरल जो पायस होते हैं, आप बाहर भी प्रचार करते हैं, जिनकी थोड़ी श्रद्धा होती है, उनको बोलो हरि नाम लो, हरि नाम ले लेते हैं। लेकिन जो दुष्कृति के लोग होते हैं, है ना, भगवान बता रहे हैं ना, नामाम दुष्कृतनो मूढ़ा माया प्रता ज्ञाना असुरम भावा, 4 प्रकार के दुष्कृति, उनके लिए डिफिकल्ट है। दूसरा क्वेश्चन तो ये कि जैसे अजामिल का आता है कि उनको थोड़ा सा भक्ति उन्मुख सुकृति मिली और वो भगवान के धाम चले गए, और हम लोग को खूब मिलती है, रोज ही मिलती है। हाँ। तो ऐसा लगता है कि फिर हमारे साथ अन्याय हो रहा है कि हम तो कब से लगे हुए, और अजामिल को इतने से थोड़े से ही मिल गया। हाँ। नहीं, अजामिल का केस जो है बहुत स्पेशल है। आचार्यगण बताते हैं, ये जो केस है, जस्ट टू ग्लोरीफाई द पोटेंसी ऑफ द होली नेम, पहला ये। और देखेंगे अजामिल के केस में भी, अजामिल ने जब सेकंड चांस जब अजामिल को मिलता है, तो उसके बाद वो दृढ़ प्रयास करता है
लगभग कई वर्षों तक वो हरिद्वार में जाके बहुत ही, जिसको कहते हैं मतलब प्योर प्रैक्टिसेस करता है वो, तब वो जाता है वो। आप समझ रहे हो, तुरंत नहीं चला गया, उसी समय नहीं ले गए उसको विष्णुदूत। चाहते तो उसी समय ले जाते, भगवान के नाम का उच्चारण कर लिया था वो, लेकिन उस समय नहीं गया। जब वो बहुत रिपेंट करता है, बहुत दृढ़ता के साथ फिर वो इन प्रैक्टिसेस को करता है, दिस मूड ऑफ रिपेंटेंस इज देयर, प्रभुपाद बोलते हैं, एंड डिटर्मिनेशन। जब वो ऐसा अभ्यास करता है फिर आगे, फिर वो दे बिकम एलिजिबल टू गो बैक होम टू द वैकुंठ प्लैनेट, तब जाता है। तो इसी प्रकार से हमें एक जीवात्मा, प्रभुपाद बोलते हैं, इस भौतिक संसार में फ्रॉम द टाइम मेमोरियल सड़ रहे हैं यहाँ पे। तो जो ये हमें अवधि मिली है कुछ भी नहीं है ये। हमें लगता है प्रभु जी 50 साल करनी पड़ेगी भक्ति, क्या बात कर रहे हो प्रभु जी, भक्ति तो तुरंत होना चाहिए। अरे भैया ये तुरंत है ये, और कितना आपको फास्ट चाहिए, एक ही जीवन है। प्रभुपाद बोलते हैं चैंट 16 राउंड्स, फॉलोइंग 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल, डूइंग सम सर्विस, इन दिस लाइफ टाइम यू गो बैक होम, बैक टू गॉड। अब बताइए कितना शीघ्र चाहिए हमें, इससे शीघ्र और क्या हो सकता है। ब्रह्मांड भ्रमित है कोनो भाग्यवान, इतने ब्रह्मांडों में भ्रमण कर लिया है, कई बार कई योनियों में चले गए हैं, नहीं प्राप्ति हो पाई, लेकिन इस जीवन में हो जाएगी अगर हम करते हैं सही से। वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एज फार एज इटर्निटी इज कंसर्न। प्रभुपाद जी लिखते हैं ना भगवद गीता के तात्पर्य में, द लाइफ ऑफ ब्रह्मा इज लाइक अ बबल इन द ओशियन। अब बताइए ब्रह्मा जी का जो जीवन है वो क्या है, बबल ऑफ ओशियन है। जैसे ओशियन में बबल होती है तो ब्रह्मा जी का जीवन है। अब हमारा जीवन क्या है आप बताइए उसकी तुलना में। लेकिन हमें लगता है बहुत बड़ा जीवन, इतना लंबा प्रयास, अरे कुछ भी नहीं है, लगते हैं। ठीक है, ठीक है। आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरणामृत की, जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की, आप सब भक्तों की निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।